See, in the last lecture, we have done with the electrical resistance, and electrical resistance given by the symbol R. And we all know that electrical resistance R is equal to potential difference V divided by the electric current I. Resistance. Resistance is measured in a unit of ohm. Then resistance is proportional to L upon A, where L is the length of the conductor and A is the cross-sectional area of conductor. And R is equal to rho. Rho is a proportionality constant, which is also called as the resistivity. Correct? And then we have written the same formula in the terms of rho. Rho is equal to R. Rho is equal to R. And this will go here of what? A upon L. So rho is equal to R into A upon L is called as a resistivity, and the value of the resistivity equal to R if the length of the conductor is 1 meter and area of the conductor cross-sectional area is 1 meter square. So what is resistivity? This is the formula we have got for the resistivity, and resistivity is the equal to the resistance of the conductor having unit length and unit cross-sectional area. मतलब अगर हमारे कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर रहेगा और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर 1 मीटर स्क्वायर रहेगा तो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी इज गोइंग टू बी द सेम एज रेजिस्टेंस. ओके, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था और यूनिट्स के बारे में देखा था. रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था? सी रेजिस्टिविटी R is measured in ohm, area is in meter square, length is in the meter. So resistivity is ohm meter, and ohm meter is a common unit. SI unit, and common unit of the resistivity is what? Ohm centimeter. मतलब यहाँ पे भी ओम है, यहाँ पे भी ओम है, खाली मीटर और यहाँ पे सेंटीमीटर है. तो हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में देखा और रेजिस्टेंस से हमें रेजिस्टिविटी मिला. रेजिस्टेंस के बारे में पहले देखा और रेजिस्टेंस के बाद क्या मिला? रेजिस्टिविटी मिला. नाउ टुडे विल बी गोइंग ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट. ओके, yes, the next concept today we are doing here is about electrical conductance. Electrical conductance, or you can only call it as a conductance. खाली conductance भी बोल सकते हो. So जैसे हम लोग बोलते हैं electrical resistance or only resistance. Similarly, you can call it as electrical conductance or you can call it only conductance, and conductance is given by the symbol G. Conductance is given by the symbol G. Correct? Now, what is a conductance? मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे कंडक्टर है, करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो हो रहा है मतलब यहाँ से कितना कंडक्टिविटी हो रहा है. तो जो कंडक्टिविटी यहाँ से हो रहा है उसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस. इलेक्ट्रिक करंट कितना कैरी किया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टेंस. व्हाट इज इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस? द कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस. मतलब अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस ज्यादा रहेगा तो कंडक्टेंस कम रहेगा, और रेजिस्टेंस अगर कम रहेगा तो कंडक्टेंस ज्यादा रहेगा. तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. Electrical conductance and electrical resistance are inversely proportional to each other. Okay, resistance means what? The one which offers the resistance to the flow of current. Or conductance means what? The flow of electric current are called conductance. So conductance and resistance are inversely proportional to each other. Now we'll see what is the unit of conductance. So unit of electrical conductance. Electrical conductance का unit क्या आएगा? Now what formula we are having over here? G is equal to 1 upon R. G is equal to 1 upon R. Okay.
And here we know that 1 upon R, R is a resistance, and resistance measured in which unit? Ohm. So 1 upon ohm, and 1 upon ohm, here power is 1. So when ohm, I can write here in the new per ohm. So conductance is measured in the which unit? Per ohm. This is per ohm, or ohm raised to minus 1. Ohm raised to minus 1, and this per ohm or ohm raised to minus 1 is called as mho. Is called as mho. Okay. R का यूनिट ओम है, ये ओम है, और ओम का रेसिप्रोकल क्या रहेगा? ओम रेस टू माइनस 1, एंड ओम रेस टू माइनस 1 इज कॉल्ड एज mho. देखो यहाँ पे स्पेलिंग था OHM और यहाँ पे स्पेलिंग है MHO, इनवर्स है इसलिए mho हो गया. करेक्ट. See, what is the unit of electrical resistance? Sorry, what is the unit of electrical conductance? Conductance is given by the symbol J. G. G is equal to 1 upon R. Unit of the R is ohm. So when this ohm goes in the numerator, becomes what? Ohm raised to minus 1, and ohm raised to minus 1 is called as a mho. So this is the unit. So in the last lecture we have seen that ये हमारा resistance का unit क्या था? The unit of the resistance is ohm, correct? Or electrical unit is per ohm, mho. Now I'll go for the next here. This is Hello, sir. Yes. Sir, constant ना येणार. येणार आहे ते पुढे पुढचा पार्ट आहे. हे फक्त मला जस्ट याचं युनिट सांगायचं होतं. Okay, sir. So now here the SI, this is also SI unit, but the SI unit of electrical conductance, you know here that per ohm is also called as a Siemens, capital S. Per ohm, see, ohm raised to minus 1 and ohm raised to minus 1 is called as a Siemens. The SI unit of electrical conductance, the G ka unit Siemens, the Siemens SIE, Siemens. And for Siemens, what symbol we write? Capital S. Okay. So conductance का SI unit Siemens है, और कंडक्टेंस का SI यूनिट पर ओम भी है. मतलब सीमेंस एंड पर ओम आर द सेम. मतलब आप सीमेंस भी लिख सकते हो या पर ओम्स भी लिख सकते हो, बट नॉर्मली वी प्रिफर सीमेंस. ओके. नाउ नेक्स्ट, now here we write out relation proportion. Now see, electrical conductance G is proportional to A upon L. Electrical conductance G is proportional to A upon L. अभी यहाँ पे A upon L कैसे आ गया? तो I'll just show you all. See, कल हम लोगों ने क्या बोला था यहाँ पे? Resistance is proportional to L upon A. Resistance proportional to L upon A है, correct? Resistance and conductance are inversely proportional है, इसीलिए conductance is proportional to A upon L. So resistance is proportional to L upon A. So conductance is proportional to what? A upon L. So यहाँ पे A upon L, where we all know that what is A? A is called as a cross-sectional area of conductor. L is called as a length of conductor, correct? And so I write G equal to small k is a proportionality constant into A upon L. G equal to small k into A upon L, where small k is called as a proportionality constant. Small k is called as proportionality constant, and it is known by a name called as conductivity. It is known by a name called as conductivity. उसे हम लोग conductivity बोलते हैं. Small k is called as conductivity, or it can be also called as
It can be also called as electrical conductivity. Yes, but normally we prefer, ये हम लोग ज्यादा करके वर्ड यूज करते कंडक्टिविटी. देखो G और K में कंफ्यूज नहीं होना. G is called as what? खाली उसे कंडक्टेंस बोल सकते हो या इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बोल सकते हो. ये कंडक्टेंस है, ओके. और स्मॉल के क्या है? कंडक्टिविटी है. उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोल सकते हैं. कंडक्टिविटी, करेक्ट. नाउ हियर ये जो स्मॉल सिंबल के है, द नेम ऑफ द के इज कप्पा. जैसे हमारे इंग्लिश में लेटर्स है, स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, वैसे ग्रीक में भी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स है, करेक्ट. ग्रीक में भी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स है. जैसे हम लोगों ने कैपिटल के किसके लिए सिंबल यूज करते हैं? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए. तो स्मॉल के हम लोग किसके लिए यूज करेंगे? कंडक्टिविटी के लिए. एंड स्मॉल के इन द ग्रीक आर कॉल्ड एज अ कप्पा. ओके, बट एनीवे इसका इतना मीनिंग का हमें जरूरत नहीं है. बट स्मॉल के इज कॉल्ड एज द कंडक्टिविटी और इज ऑल्सो कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. खाली कंडक्टिविटी बोलोगे तो भी चलेगा या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बोलोगे तो भी चलेगा. अभी मैं इस इक्वेशन को रीअरेंज करता हूं. K इक्वल टू स्मॉल k इक्वल टू G इंटू L अपॉन A. देखो K इक्वल टू L यहां पे गया, G इंटू L अपॉन A, करेक्ट. और अगर यहाँ पे इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, अगर कंडक्टर का लेंथ है 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर, मतलब कंडक्टर का लेंथ भी 1 है, एरिया भी 1 है, तो 1 अपॉन 8 तो मीनिंग ही नहीं है. तो वैल्यू ऑफ द K इज इक्वल टू G. वैल्यू ऑफ द K इज इक्वल टू G, करेक्ट. मतलब व्हाट आई कैन से हियर, so conductivity, see either we can call it as the conductivity or we can call it as the electrical conductivity. So I'll just write down here conductivity or electrical conductivity. खाली conductivity बोलोगे तो भी चलेगा. Conductivity or electrical conductivity is equal to conductivity or electrical conductivity. Conductivity is equal to G. And what is G? Electrical conductance. Conductivity is equal to electrical conductance. Conductivity is equal to electrical conductance. मतलब K का वैल्यू G के इतना आएगा अगर हमारे कंडक्टर का लेंथ कितना रहेगा 1 मीटर और एरिया कितना रहेगा 1 मीटर स्क्वायर. सो कंडक्टिविटी is equal to electrical conductance if the length of conductor is 1 unit, मतलब 1 meter 1 centimeter, लेकिन 1. If the length of the conductor is 1 unit and its cross sectional area is also 1 unit, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया में कितना रहेगा 1 यूनिट. मतलब अगर हमारे कंडक्टर का लेंथ 1 है और अगर हमारे कंडक्टर का एरिया भी अगर 1 है तो वैल्यू ऑफ द कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द कंडक्टेंस, करेक्ट. सो व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी दोनों में से कोई एक वर्ड लिख लो. कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस if the length of the conductor is 1 unit and its cross sectional area is also 1 unit, correct. तो बिफोर और दूसरा भी यहाँ पे और एक मैं टर्म मीनिंग बोलूंगा. देखो वॉल्यूम,
हियर वॉल्यूम, देखो लेंथ 1 मीटर है, लेंथ मतलब 1 डायमेंशन हुआ, एरिया का मतलब क्या हुआ, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो अगर मैं ऐसा एज्यूम करूंगा एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ और एक थर्ड डायमेंशन है, तो वॉल्यूम बनेगा, व्हाट इज वॉल्यूम फॉर्मूला, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, करेक्ट। तो लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर हुआ, एंड हाइट मतलब ये 1 मीटर स्क्वायर हुआ। इसका मतलब अगर हम लोग सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्यूशन, देखो अगर हम लोग मेटल रॉड की बात करेंगे तो लेंथ देखेंगे और एरिया देखेंगे, लेकिन अगर हम लोग सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो सॉल्यूशन का क्या मेजर करेंगे, वॉल्यूम। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 मीटर क्यूब। देखो 1 मीटर क्यूब कैसे आया, यहाँ पे एरिया है, एरिया का मतलब क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब 1 मीटर स्क्वायर। और तीसरा डायमेंशन अगर हमने हाइट लिया तो हाइट भी 1 है, तो लेंथ भी 1 है, ब्रेथ भी 1 है, हाइट भी 1 है, 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर भी हाउ मच, 1 मीटर क्यूब। तो इसका मतलब सेम डेफिनेशन, ये डेफिनेशन कौन से टर्म में दिया, एक कंडक्टर का लेंथ 1 यूनिट है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी 1 यूनिट है, then the conductivity is equal to what, electrical conductance. But similarly यहाँ पे वॉल्यूम भी 1 यूनिट आ रहा है, 1 यूनिट मीटर क्यूब। तो आई जस्ट राइट सेकंड डेफिनेशन हियर, I'll just write down here conductivity of solution is equal to, conductivity of a solution is equal to the electrical conductance of वन मतलब हम लोग क्या लिखेंगे, कंडक्टेंस ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम लोग वॉल्यूम यूज कर रहे हैं तो वॉल्यूम कितना होना चाहिए, यूनिट वॉल्यूम, यूनिट वॉल्यूम मतलब 1 ml, लाइक फॉर एग्जांपल 1 मीटर क्यूब, और फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम शुड बी आइदर 1 मीटर क्यूब अगर ऐसा यूनिट रहेगा तो, और इट शुड बी 1 सेंटीमीटर क्यूब कॉमन यूनिट रहेगा तो, करेक्ट। तो आई जस्ट रिपीट वंस अगेन बिकॉज हमारा एक चैप्टर है वो कंडक्टिविटी के ऊपर ही डिपेंड है, मतलब पहला कंडक्टिविटी और एक कंडक्टिविटी आ जाएगा। आई जस्ट रिपीट वंस अगेन, सी G is called as conductance. Conductance is inversely proportional to the resistance. Resistance का यूनिट ओम था, करेक्ट। तो कंडक्टेंस का यूनिट क्या बना, पर ओम, एंड पर ओम इज कॉल्ड एज अ मो। तो ये भी एक यूनिट हुआ, और एसआई यूनिट मतलब ये भी एसआई यूनिट ही है, दोनों एसआई यूनिट ही है, इसे बोलते हैं मो। एंड एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इज सीमेंस, कैपिटल एस, बिकॉज स्मॉल एस इज द यूनिट ऑफ टाइम, सेकेंड्स, यहाँ पे कैपिटल एस है। और बाद में कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, ए अपॉन एल। A is the cross sectional area of the conductor, L is the length of the conductor, then proportionality sign is replaced by what, K. K is called as the proportionality constant, correct. And so K is called as proportionality constant, or it can be called as a conductivity, or it can be also called as a electrical conductivity, or उसे और भी बोलते हैं हम लोग, it is also called as electrolytic conductivity. Either you can call it as electrolytic conductivity or it can be called as electrical conductivity. और में conductivity का definition same formula K के फॉर्मूला में लिखा, K के फॉर्म में लिखा, K इक्वल टू क्या लिखा हम लोगों ने यहाँ पे, G इंटू L अपॉन ए। और अगर हमारा कंडक्टर का लेंथ रहेगा 1 मीटर और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया रहेगा 1 मीटर स्क्वायर, तो वैल्यू ऑफ द K मतलब कंडक्टिविटी इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन हुआ, कंडक्टिविटी इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज 1 यूनिट एंड इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया इज आल्सो 1 यूनिट। एक डेफिनेशन हुआ, लेकिन हमें मालूम है एरिया मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ, और तीसरा डायमेंशन मतलब हाइट।
तीनों को साथ में अगर कंबाइन करेंगे, दोनों को साथ में अगर कंबाइन, तो वॉल्यूम मिलेगा, तो वॉल्यूम भी कितना होगा 1। तो अगर हमारा वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, तो भी वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, तो देखो डेफिनेशन क्या आएगा, सेकंड डेफिनेशन। Second definition, conductivity can be also defined as what? Conductivity of a solution is equal to electrical conductance if of unit volume of the solution। मतलब अगर हमारे पास solution का वॉल्यूम कितना रहेगा 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब either it can be 1 मीटर क्यूब or it can be 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो इन सिंपल लैंग्वेज कि जब भी हमें कंडक्टिविटी मेजर करना है, हमारे पास सॉल्यूशन का अमाउंट कितना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 मीटर क्यूब। बट नॉर्मली हियर वी टॉक अबाउट द कॉमन यूनिट। मतलब जब भी मुझे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा, कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए मुझे जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा, उस सॉल्यूशन से मैं कितना अमाउंट यूज करूंगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट, 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑलवेज। सो आई जस्ट राइट डाउन हियर, वेरी, ये मेन डेफिनेशन है, सेकंड डेफिनेशन आप दे सकते हो, और आई जस्ट राइट डाउन द मीनिंग हियर। while measuring conductivity, what is symbol of conductivity? Small k. While measuring conductivity, the volume of solution has to be 1 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मतलब जब भी हम लोग सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करेंगे, कंडक्टिविटी मेजर करते समय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। मतलब तुम्हारे पास बहुत सारा सॉल्यूशन दिया रहेगा, तुम्हारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन रहेगा, 10 लीटर रहेगा, 100 लीटर रहेगा, लेकिन अगर तुम्हें कंडक्टिविटी मेजर करना है तो उसमें से कितना सॉल्यूशन यूज करोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अभी इतने पूरे, हाँ, उसके बाद नाउ आई एम जस्ट गोइंग फॉर, ओके 1 मिनट, कैन यू ऑल, यहाँ पे किसी ने क्वेरी डाला था, सबको आवाज बराबर सुनने के लिए आ रहा है? यस सर। ओके ओके, तो जिसको भी आवाज नहीं आ रहा है या वीडियो का मतलब ब्रेक हो रहा है, तो शायद मे भी तुम्हारा नेटवर्क प्रॉपर नहीं रहेगा। ठीक है, सो अगर हमें कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा, ओके ओके ठीक, अगर तुम्हें कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए। ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग फॉर द अदर SI unit of conductivity। SI unit of conduct, मतलब कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या रहेगा? तो व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर कंडक्टिविटी? स्मॉल k इक्वल टू G into L upon A। Small k equal to G into L upon A। Now we know here G is a conductance, conductance का SI यूनिट सीमेंस है, लेंथ का SI यूनिट मीटर है, एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर है, करेक्ट। सो कंडक्टेंस SI यूनिट इज सीमेंस, लेंथ SI यूनिट इज मीटर एंड एरिया का SI यूनिट मीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे यूनिट क्या मिलेगा, देखो सीमेंस, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 अपॉन मीटर बचेगा, 1 अपॉन मीटर, करेक्ट। सो आई विल राइट सीमेंस पर मीटर, it is called as a Siemens per meter। ओके, सीमेंस पर मीटर, ये सीमेंस पर मीटर आ गया है। ओके, तो ये हमारा SI यूनिट हो गया, SI यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, K का SI यूनिट सीमेंस पर मीटर। नाउ हियर सीमेंस पर मीटर भी बोल सकते हो, और वी नो दैट सीमेंस मतलब पर ओम, पर ओम पर मीटर, सीमेंस का मतलब पर ओम। सो पर ओम पर मीटर दोनों SI यूनिट है एंड कॉमन यूनिट, कॉमन यूनिट क्या रहेगा यहाँ पे? कॉमन यूनिट विल बी
ये पर ओम और मीटर की जगह सेंटीमीटर लिखना है, तो क्या आएगा यहाँ पे पर सेंटीमीटर। कॉमन यूनिट क्या आएगा देखो यहाँ पे, पर ओम पर सेंटीमीटर। तो ये कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट है और ये कंडक्टिविटी का कॉमन यूनिट है। तो दीज आर द यूनिट्स ऑफ कंडक्टिविटी। ओके, सो आई जस्ट रिपीट वन मोर टाइम एंड देन, बिकॉज देखो कंडक्ट सिंपल लैंग्वेज में कंडक्टिविटी मतलब क्या, तो अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन है, अगर हमारे पास कोई भी सॉल्यूशंस है, तो वो सॉल्यूशन करंट कितना कैरी कर सकता है। तो सॉल्यूशन का करंट कैरिंग कैपेसिटी मेजर करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंडक्टिविटी। अगर तुम्हें कोई भी सॉल्यूशन दिया रहेगा और बोला कि सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करो, कंडक्टिविटी मेजर करो का मतलब क्या होता है कि वो सॉल्यूशंस कितना करंट कैरी कर सकता है। The current carrying ability of the solution, correct, is called as a simple language में conductivity. Okay, so before I proceed, I'll just repeat once again and then I'll go for the next part. देखो, सबसे पहले क्या देखा था, conductance is reciprocal of the resistance, और कंडक्टेंस का एसआई यूनिट पर ओम भी है और सीमेंस भी है, दोनों सेम है। कंडक्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू ए अपॉन एल। Proportionality sign is replaced by k and this k is called as the conductivity. Small k is called as the conductivity. Actually what is the name of the small k, kappa, but हमें यहाँ पे यूज नहीं करना है, ठीक है, स्मॉल k लिखना है। और k अभी k इक्वल टू, ये इक्वेशन g के फॉर्म में था, उसे k के फॉर्म में कन्वर्ट, तो k इक्वल टू g इंटू एल अपॉन ए, करेक्ट। और k का वैल्यू g इतना होगा कभी अगर हमारे कंडक्टर का लेंथ 1 मीटर और कंडक्टर का एरिया भी 1 मीटर स्क्वायर रहेगा। तो ये पहला डेफिनेशन हुआ। दूसरा डेफिनेशन क्या दिया था हम लोगों ने, हमारा कंडक्टिविटी इज गोइंग टू बी इक्वल टू कंडक्टेंस इफ द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिट वॉल्यूम, एंड नॉर्मली वॉल्यूम हम लोग कितना लेंगे, 1 सेंटीमीटर। सो ये सेंटेंस हमारा इंपॉर्टेंट है कि व्हाइल मेजरिंग द कंडक्टिविटी, मतलब अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन दिया रहेगा और अगर मुझे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर। And then here SI unit of conductivity, what is the SI unit of conductivity, Siemens per meter और per ohm per meter, per ohm को हम लोग mho बोलते हैं, तो Siemens per meter, per ohm per meter, और कॉमन यूनिट क्या रहेगा, per ohm per centimeter, per ohm per centimeter। ओके, ये हो गया करेक्ट। तो अभी हमें और एक पॉइंट यहाँ पे देखना है मुझे, conductivity depends on concentration of solution। मतलब कोई भी अगर हमें सॉल्यूशन दिया रहेगा तो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी हम लोग मेजर कर सकते हैं, बट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन व्हाट, कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन, करेक्ट। तो अभी कैसे हुआ, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सॉल्यूशन है 2 मोलार NaOH, मतलब NaOH सॉल्यूशन मेरे पास है और उसका कंसंट्रेशन 2 मोलार है। दूसरा मेरे पास HCl सॉल्यूशन है, उसका कंसंट्रेशन 1 मोलार है, HCl सॉल्यूशन कंसंट्रेशन 1 मोलार है। और तीसरा मेरे पास पोटेशियम क्लोराइड सॉल्यूशन है और उसका कंसंट्रेशन 0.1 मोलार है। सो हमारे पास 3 सॉल्यूशंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एंड पोटेशियम क्लोराइड, तीनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है। नाउ हियर तीनों में से देखो, यहाँ पे कंसंट्रेशन 0.1 है, यहाँ पे कंसंट्रेशन 1 मोलार है और यहाँ पे कंसंट्रेशन 2 मोलार है। तो तीनों को अगर मैं कंपेयर करूंगा तो आउट ऑफ द 3 सॉल्यूशन दिस कंसंट्रेशन इज हायर, ये कंसंट्रेशन हायर है, and out of the 3 this concentration is lower। so here I am having higher concentration and here I am having lower concentration। okay, higher concentration and lower concentration। अभी देखो this solution का concentration high रहेगा, higher concentration का मतलब क्या होगा, NaOH will have more number of ions,
मतलब यहाँ पे NaOH के आयंस भी ज्यादा रहेंगे, मोर नंबर ऑफ आयंस। लेकिन यहाँ पे KCl का कॉन्सेंट्रेशन लो है, लो कॉन्सेंट्रेशन लो है मतलब क्या होगा, KCl विल हैव लेस नंबर ऑफ आयंस, करेक्ट। KCl विल हैव व्हाट, लेस नंबर ऑफ आयंस। अगर अभी देखो सिंपल है, NaOH का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है इसलिए NaOH में नंबर ऑफ आयंस भी ज्यादा रहेंगे, और KCl का कॉन्सेंट्रेशन कम है इसका मतलब KCl के आयंस भी यहाँ पे कम रहेगा। एंड वी नो दैट मोर द नंबर ऑफ आयन, मोर इज द करंट कैरिंग कैपेसिटी, मोर इज द कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, मोर कंडक्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी का वैल्यू ज्यादा रहेगा, तो हियर विल हैव द मोर वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी एंड हियर विल हैव द low value or lower value of conductivity, lower conductivity। तो हमने आगे का पार्ट में बोलता हूँ बाद में, लेकिन यहाँ पे देखो क्या हम लोगों ने देखा था, conductivity of the solution depends upon its concentration, conductivity of the solution depends on its concentration, higher the concentration of the solution, more the number of ion and more is the conductivity, lower the concentration of the solution, lower, lesser are the number of ion and lower is the conductivity, correct। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला कि यहाँ पे हमारा कंडक्टिविटी 200 है, यहाँ पे हमारा कंडक्टिविटी 10 है, और इसका मतलब जो दोनों के बीच में मिडल है उसका कंडक्टिविटी फॉर एग्जाम्पल 100 है, तो तीनों का कंडक्टिविटी मेजर करिए। सॉल्यूशन नंबर 1 का कंडक्टिविटी 200 है, सॉल्यूशन नंबर 2 का कंडक्टिविटी 100 है, और सॉल्यूशन नंबर 3 का कंडक्टिविटी 10 है। और कंडक्टिविटी का यूनिट क्या रहेगा, सीमेंस पर मीटर और पर ओम पर मीटर, ऐसा यूनिट। और कॉमन यूनिट क्या रहेगा, पर ओम पर सेंटीमीटर। तो हम तीनों सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर कर दिया है। ओके, अभी आगे का पार्ट क्या है देखो, ये हमारा कंडक्टिविटी के बारे में हुआ, करेक्ट। तो नाउ आफ्टर दैट, इसके बाद इसका जो एंड है मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ पे एंड में क्या होगा वो, लेकिन बाद yes, now we are starting with a new term which is called as a मोलार कंडक्टिविटी। अभी तक हमने कंडक्टिविटी के बारे में बात किया। कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब हमें जो भी सॉल्यूशन दिया रहेगा उसमें से कितना अमाउंट हमें यूज करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट। वी हैव टू यूज ओनली 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन, 1 सेंटीमीटर क्यूब। अभी हमें लर्न करना है मोलार कंडक्टिविटी, मोलार कंडक्टिविटी। and molar conductivity is shown by a symbol, a cap like symbol, and this cap like symbol is called as a lambda, cap like symbol is called as a lambda। अभी लैम्बडा कैसे, जैसे हमारे अभी देखो हम लोगों ने लैम्बडा का सिंबल ये यूज किया है, लेकिन ये है कैपिटल लैम्बडा और ये है स्मॉल लैम्बडा। जैसे हमने इंग्लिश में स्मॉल और कैपिटल लेटर्स होते हैं, वैसे ग्रीक में भी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स होते हैं। तो ये कैपिटल लैम्बडा है और एक स्मॉल लैम्बडा, हम दोनों को यूज करना है। कैपिटल लैम्बडा भी यूज करना है, बट कैप लाइक सिंबल, कैप लाइक सिंबल इज ऑफ लैम्बडा एंड लैम्बडा इज अ मोलार कंडक्टिविटी, और स्मॉल कंडक्टिविटी बाद में देखेंगे। ओके, सो मोलार कंडक्टिविटी शोन बाय विच सिंबल, लैम्बडा, cap। Now the molar let first definition here, the molar conductivity of an electrolytic solution is the electrolytic conductivity K divided by its
मोलार कॉन्सेंट्रेशन सी। मतलब अगर मुझे मोलार कंडक्टिविटी फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, मोलार कंडक्टिविटी अगर मुझे फाइंड आउट करना, क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। मतलब सी, स्मॉल k कैन बी कॉल्ड एज ओनली कंडक्टिविटी और स्मॉल k कैन बी कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी है जो हमने मेजर किया हुआ है उसे उसके कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करना है। तो मोलार कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या रहेगा, देखो, द मोलार कंडक्टिविटी is equal to इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी मतलब K डिवाइडेड बाय मोलार concentration. And we know here molar conductivity given by which symbol, lambda. Cap is called as lambda. Electrolytic conductivity symbol is small k and molar concentration is C. ये हमारा मोलार कंडक्टिविटी का फर्स्ट फॉर्मूला हो। ओके, देखो, सो व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी, ये हमारा मोलार कंडक्टिविटी का फर्स्ट डेफिनेशन है। व्हाट इज मोलार कंडक्टिविटी, द मोल एज पर फॉर्मूला ही है, द मोलार कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू व्हाट, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के divided by its molar concentration. Okay, so molar conductivity is equal to what, electrolytic conductivity divided by the molar concentration of the solution. Okay, अभी पहले इसका SI यूनिट देखते हैं, कॉमन यूनिट। So now we'll see here SI unit of molar, SI unit of molar conductivity। देखो, ओनली K का मतलब कंडक्टिविटी और इस लैम्बडा का मतलब क्या होगा, मोलार कंडक्टिविटी। तो व्हाट इज द SI यूनिट, अभी we have just seen the SI unit of K is what, Siemens per meter। concentration SI unit is what, mole per meter cube। Normally we say concentration in mole per liter, but mole per liter is a common unit, but mole per meter cube is a SI unit, correct? So here Siemens meter raised to -1 और ये मीटर ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, मीटर रेस टू +3, मीटर रेस टू +3 और ये मोल ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, पर मोल। सी हियर कंडक्टिविटी का SI यूनिट क्या था, सीमेंस पर मीटर। कॉन्सेंट्रेशन का SI यूनिट क्या था, मोल पर मीटर क्यूब, मीटर रेस टू -3। ये सीमेंस पर मीटर, ये मीटर क्यूब ऊपर जाने के बाद क्या बना, +3 और मोल जिसका पावर +1 है ऊपर जाने के बाद क्या बनेगा, -1। आई जस्ट राइट डाउन हियर सीमेंस, ओके, और -1 एंड +3 दोनों मीटर मीटर ही है। -1 +3 विल बी व्हाट, मीटर स्क्वायर पर मोल। सो सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल, सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल इज SI यूनिट। और अगर मुझे कॉमन यूनिट्स अगर लिखना है, कॉमन यूनिट, सो कॉमन यूनिट ऑफ मोलार कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करो आप, सीमेंस, देखो सीमेंस, अगर मैंने सीमेंस रखा तो ठीक है, सीमेंस में रख सकता हूँ, खाली मुझे यहाँ पे चेंज करना है, मीटर स्क्वायर को मुझे सेंटीमीटर स्क्वायर करना है, मोल रेस टू -1 एंड सीमेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पर ओम, चलेगा, सीमेंस और पर ओम दोनों सेम है। और यहाँ पे क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये हमारा कॉमन, मतलब कॉमन यूनिट में खाली क्या चेंज होना चाहिए,
जो मीटर स्क्वायर है उसको सेंटीमीटर स्क्वायर करो, बस बाकी सब सेम। तो अभी यहाँ पे सीमेंस भी लिख सकते हो, और सीमेंस की जगह यहाँ पे एसआई यूनिट और क्या लिख सकते हो, व्हाट इज और एसआई यूनिट? एसआई यूनिट तुम ऐसा भी लिख सकते हो, पर ओम मीटर स्क्वायर पर मोल, ये भी एसआई यूनिट चलेगा और ये भी चलेगा, बट नॉर्मली वी प्रीफर दिस, ये एसआई यूनिट हुआ। तो कॉमन यूनिट में क्या चेंज हो रहा है, मीटर स्क्वायर को हम लोग सेंटीमीटर स्क्वायर में ले रहे हैं, और सीमेंस सीमेंस लिखो, एस सीमेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पर ओम। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पर ओम? मो, MHO इज अ मो। ओके, तो अभी हमने यहाँ पे क्या देखा, मोलर कंडक्टिविटी देखा। व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज व्हाट? द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी K डिवाइडेड बाय इट्स मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे कंडक्टिविटी जो मेजर किया रहेगा उसके कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड करो, करेक्ट? तो हमें ही मिला, और बाद में ऐसा यूनिट देखा और कॉमन यूनिट देखा। अभी मेरा क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे नाउ यू मस्ट बी हैविंग अ डाउट इन योर माइंड कि हम लोग अगर सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी का जरूरत क्या है? मतलब अगर हमारे पास सॉल्यूशंस है, हम लोग सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर मेजर कर सकते हैं, कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं, हाउ वी कैन मेजर द कंडक्टिविटी? व्हाइल मेजरिंग द कंडक्टिविटी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हैज टू बी हाउ मच? 1 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन दिया रहेगा और अगर मुझे सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए, करेक्ट? और हम लोग ने सॉल्यूशन का देखो NaOH का कंडक्टिविटी मेजर कर दिया, 200 है। बाद में हम लोग ने HCl का कंडक्टिविटी मेजर कर दिया, 100 है। और हमने KCl का कंडक्टिविटी मेजर कर दिया, कितना है? 10 है। कंडक्टिविटी मेजर कर दिया, लेकिन हम लोग तीनों का कंडक्टिविटी कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब अगर मुझे किसी ने क्वेश्चन पूछा कि तीनों में से किसका कंडक्टिविटी हायर है, तो वैल्यूज देख के तुम लोग क्या बोलोगे? यस, NaOH हैज अ हायर कंडक्टिविटी बिकॉज इसका वैल्यू 200 है, और KCl हैज अ लोअर कंडक्टिविटी बिकॉज इसका वैल्यू K का लेस है। लेकिन ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि तीनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है, तीनों का कॉन्सेंट्रेशन अलग है। तो तीनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर अलग रहेगा तो हम लोग उनका कंडक्टिविटी कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब मैं तीनों सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकता हूँ। यस, कंडक्टिविटी ऑफ NaOH 200, कंडक्टिविटी ऑफ HCl इज 100, कंडक्टिविटी ऑफ KCl इज 10। तीनों का कंडक्टिविटी में फाइंड आउट कर सकता हूँ, लेकिन तीनों का कंडक्टिविटी कंपेयर नहीं कर सकता। मतलब अगर मुझे बोला है कि मेरे पास 3 सॉल्यूशंस है, तीनों में से किसका कंडक्टिविटी हायर है बोलो, तो मैं कंपैरिजन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे रूल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हायर रहेगा उसका कंडक्टिविटी भी हायर रहेगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन लोअर रहेगा उसका कंडक्टिविटी भी लोअर रहेगा। तो इसीलिए हम लोग सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन दो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कंपेयर नहीं कर सकते। और सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कंपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए हमें नया टर्म लर्न करना पड़ा, एंड द न्यू टर्म विच वी हैव लर्नड इज मोलर कंडक्टिविटी। मतलब मोलर कंडक्टिविटी अगर हमने सॉल्यूशन का फाइंड आउट किया तो दो सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। अभी कैसे देखो, अभी फॉर एग्जांपल देखो, अभी हमने देखा, यहाँ पे मैं फर्स्ट एग्जांपल लेता हूँ इसका। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? लैम्बडा इज इक्वल टू K अपॉन C। लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा मतलब मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K अपॉन C। अभी यहाँ पे K का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 200 है, ओके। और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 2 मोलर है। तो 200 अपॉन 2 अगर मैं करूंगा तो 200 अपॉन 2 मतलब लैम्बडा, लैम्बडा का वैल्यू कितना आ गया? 100 आ गया, ओके। सिमिलरली यहाँ पे लैम्बडा इज इक्वल टू K अपॉन C। K का वैल्यू कितना दिया हुआ? 100, कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 1। तो यहाँ पे भी मोलर कंडक्टिविटी कितना आ गया? 100, ओके। और लास्ट इधर यहाँ पे अगर मुझे लैम्बडा फाइंड आउट करना, लैम्बडा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा? लैम्बडा इज इक्वल टू K अपॉन C। K का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया हुआ है? 0.1। तो 10 अपॉन 0.1 अगर मैं करूंगा तो 10 अपॉन 0.1 मतलब कितना आएगा? 100। तो इसका मतलब देखो,
फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी 100 है, सेकेंड सॉल्यूशन का भी मोलर कंडक्टिविटी 100 है, और थर्ड का भी मोलर कंडक्टिविटी, थर्ड वाले का भी मोलर कंडक्टिविटी कितना है? 100 ही है। इसका मतलब तीनों सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी सेम है। मतलब अगर आप के से कंपेयर करने जाओगे तो क्या बोलोगे? यस, इसका कंडक्टिविटी हायर है और इसका कंडक्टिविटी लोअर है। लेकिन अगर लैम्बडा फाइंड आउट करोगे, लैम्बडा मतलब मोलर कंडक्टिविटी अगर फाइंड आउट करोगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी कितना मिला? 100 मिला। सेकेंड सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी भी 100 मिला, और थर्ड वाले का भी मोलर कंडक्टिविटी 100 ही मिला। इसका मतलब तीनों सॉल्यूशन का करंट कैरिंग कैपेसिटी सेम है, मतलब तीनों सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी सेम है। तो इसीलिए हम लोग नया टर्म लर्न कर दिए, मोलर कंडक्टिविटी। मतलब सॉल्यूशन का हम लोग ने कंडक्टिविटी तो मेजर कर सकते थे, लेकिन सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी कंपेयर नहीं कर सकते थे, और कंडक्टिविटी कंपेयर नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने कौन सा नया टर्म लर्न कर दिया? मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी डोन बाय विथ सिंबल लैम्बडा, कैप लाइक सिंबल। एंड व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी? It is the electrolytic conductivity divided by the molar concentration. Correct? So lambda is equal to K upon C. What is the SI unit? The SI unit is what? Siemens meter square per mole, और Siemens को हम लोग क्या बोलते हैं? पर ओम मीटर स्क्वायर पर। यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है। कॉमन यूनिट क्या आएगा? देखो सेम, Siemens और पर ओम रहेंगे, पर मोल भी रहेगा, खाली हम यहाँ पे क्या कन्वर्ट करना है? सेंटीमीटर स्क्वायर करना है। ओके, तो हमारा मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन हुआ, ये मोलर कंडक्टिविटी का एक फॉर्मूला हुआ, ये मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट्स हुआ। नाउ आई एम जस्ट गोइंग फॉर द नेक्स्ट हेडिंग। जस्ट 1 minute. Significance of यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग का पार्ट जरा डिफिकल्ट है, बाद में चैप्टर थोड़ा इजी है और सिंपल है, मतलब ठीक है। तो स्टार्टिंग के मतलब और एक दो लेक्चर डिफिकल्ट जाएंगे, बाद में इजी है। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ, मतलब ये मोलर कंडक्टिविटी जो है उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये मोलर कंडक्टिविटी का हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें क्या बताता है, क्या सिग्निफिकेंस है? तो सपोज फॉर एग्जांपल हियर इफ आई से what is significance here? The first significance is to here first thing, मतलब अगर हमें कभी भी मोलर कंडक्टिविटी अगर मेजर करना रहेगा तो क्या करना है? कंसीडर a volume of solution. Consider a volume of solution containing 1 mole of dissolved 1 mole of dissolved electrolyte। मतलब हमें मोलर कंडक्टिविटी जब मेजर करना रहेगा, करेक्ट, तब सबसे पहले हमें सॉल्यूशन दिया रहेगा, सॉल्यूशन दिया रहेगा, वॉल्यूम कितना भी रहेगा, बट जो भी तुम्हारा वॉल्यूम रहेगा उसके अंदर डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए? 1 मोल। डिसॉल्व्ड इलेक्ट्रोलाइट कितना होना चाहिए? 1 मोल होना। अभी कैसे, मतलब बताता हूं मैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन, देखो अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल ऑफ NaOH है, मेरे पास 1 मोल ऑफ NaOH है। अभी 1 मोल ऑफ NaOH मतलब कितना? तो Na, we know Na atomic mass is 23, O atomic mass is 16, and H atomic mass is 1, because we know here sodium atomic mass is 23, oxygen atomic mass is 16, and hydrogen atomic mass is 1, correct? सोडियम का एटॉमिक मास 23 है, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 है। सो 23 प्लस 16 प्लस 1 इज इक्वल टू, अगर मैं ऐड करूंगा तो दैट इज गोइंग टू बिकम हाउ मच? 40 और ग्राम, एंड दिस इज द मास ऑफ हाउ मेनी मोल? यहाँ पे मैंने 1 लिया हुआ,
So this is the mass of 1 mole. So gram per mole. Okay. तो अगर मैंने बोला कि मेरे पास 1 मोल NaOH है, 1 मोल NaOH मतलब कितना NaOH है? 40 ग्राम NaOH है, करेक्ट? 40 ग्राम NaOH है. ओके, तो अभी मुझे क्या करना? 40 ग्राम NaOH है, तो हियर आई से मैंने 3 सॉल्यूशन बना. पहले सॉल्यूशन मैंने क्या किया? 40 ग्राम NaOH dissolved in 1 liter of water. ये पहला सॉल्यूशन बना दिया. सेकेंड, 40 ग्राम NaOH dissolved in 2 liter of water. एंड तीसरा सॉल्यूशन मैंने बना दिया 40 ग्राम NaOH dissolved in 3 liter of water. तो अभी देखो यहाँ पे पहले नोटिस करो, यहाँ पे मैंने कितना NaOH लिया? 40 ग्राम लिया. 40 ग्राम का मतलब कितना हुआ? 1 मोल. यहाँ पे भी 40 ग्राम NaOH लिया, मतलब कितना मोल लिया? 1 मोल. और यहाँ पे भी मैंने 40 ग्राम NaOH लिया, मतलब 1 मोल. तो तीनों जगह सोल्यूट मतलब अपना जो सोल्यूट है, जो डिसॉल्व हुआ होने वाला सोल्यूट है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका अमाउंट कितना लिया है हम लोगों ने? 1 मोल. बट ओनली थिंग इज व्हाट हियर, 1 मोल dissolved in 1 liter of water, 1 mole dissolved in 2 liter of water, and 1 mole dissolved in 3 liter of water. Okay, यहाँ से क्या पता चलेगा? तो और हम लोग फिर मतलब कंपल्सरी क्या उन्होंने बोला है कि तुम्हारा देखो मोलर कंडक्टिविटी इंपॉर्टेंस क्या है, तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना भी रहेगा. वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी 1 लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी 2 लीटर, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कैन बी 3 एंड मेनी मोर लीटर. लेकिन उस सॉल्यूशन में जो सोल्यूट डिसॉल्व करोगे उसका अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल चाहिए. तो ही हमें जो वैल्यू मिलेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोलर कंडक्टिविटी. मोलर का मतलब द अमाउंट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट dissolved in the solution is how much? 1 mole. Amount of the electrolyte dissolved in the solution is equal to how much? 1 mole. मतलब हम लोग कोई भी सॉल्यूशन बना दे, कोई भी सॉल्यूशन बना दो, लेकिन उस सॉल्यूशन के अंदर हमारे सोल्यूट का अमाउंट कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए. सोल्यूट का अमाउंट कंपल्सरी कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए, करेक्ट? और लाइक फॉर एग्जांपल, तो ये हमारा रिलेशन है. मतलब सो व्हाट इज हियर द फर्स्ट क्या बोला है? व्हाट इज सिग्निफिकेंस मोलर कंडक्टिविटी? मतलब मोलर कंडक्टिविटी हमें क्या बताता है कि तुम कोई भी सॉल्यूशन ले लो, लेकिन वो जो सॉल्यूशन तुमने बनाया हुआ रहेगा, उस सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट का अमाउंट कंपल्सरी कितना होना चाहिए? 1 मोल होना चाहिए. मतलब अगर तुम बोलोगे नहीं कि मैंने यहाँ पे 80 ग्राम लिया, 80 ग्राम का मतलब कितना हुआ? 2 मोल हुआ, तो नहीं चलेगा. सोल्यूट का अमाउंट कंपल्सरी 1 मोल होना चाहिए, और फिर वाटर का अमाउंट तुम लोग चेंज कर सकते हो, करेक्ट? तो ये हमारा सिग्निफिकेंस. सो आई जस्ट राइट डाउन डेफिनेशन हियर. सो डेफिनेशन क्या आएगा? और सेकंड डेफिनेशन क्या आएगा? देखो मोलर कंडक्टिविटी का सेकंड डेफिनेशन यहाँ पे आएगा, द मोलर कंडक्टिविटी is the electrical conductance. Molar conductivity is the electrical conductance generated by all the ions in 1 mole of the electrolyte. मतलब अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का अगर मोलर कंडक्टिविटी मेजर करना है, तो मोलर कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस, मतलब मुझे कंडक्टेंस मिलेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मिलेगा कभी जनरेटेड बाय ऑल द आयंस. मतलब अभी देखो यहाँ पे NaOH है, when NaOH dissolved in the water क्या प्रोड्यूस करेगा? Na प्लस एंड OH माइनस. यहाँ पे भी क्या प्रोड्यूस करेगा? Na प्लस एंड OH माइनस. और यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा? Na प्लस एंड OH. तीनों जगह मुझे आयंस मिल जाएंगे, करेक्ट? लेकिन यू नो व्हाट हैपन, 40 ग्राम NaOH dissolved in 1 liter, यहाँ पे वाटर कम है इसलिए कम आयंस मिलेंगे, और यहाँ पे वाटर ज्यादा है इसलिए, लेकिन वो कंसिडर बाद में करेंगे, लेकिन ये आयंस मिल रहे. तो 40 ग्राम NaOH ने आयंस प्रोड्यूस कर दिए, यहाँ पे भी 40 ग्राम NaOH ने आयंस प्रोड्यूस कर दिए. तो ये आयंस है, एंड दीज आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग द इलेक्ट्रिक करंट.
और ये जो आयन जो करंट कैरी करेंगे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोलार कंडक्टिविटी, क्योंकि हमारे सॉल्यूट का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 1 मोल दिया। सो व्हाट इज सेकंड डेफिनेशन हियर, द मोलार कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इज द इलेक्ट्रिकल, सॉरी वर्ड रहेगा मेरा, मोलार कंडक्टिविटी इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, एक मिनट स्पेस नहीं है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस जनरेटेड बाय ऑल द आयंस इन 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मतलब अगर मुझे मोलर कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा तो मेरे पास सोल्यूट का अमाउंट कंपल्सरी कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। कोई भी सोल्यूट होने दो, लेकिन सोल्यूट का अमाउंट 1 मोल होना चाहिए। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना भी चलेगा। तो दो मेन डिफरेंस है, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। ओके, तो मैं मेन डिफरेंस यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। so I'll just repeat, कंडक्टिविटी मतलब स्मॉल के, कंडक्टिविटी मतलब व्हाट, इट इज द कंडक्टेंस of all ions present in, it is the conductance of all, it is the conductance, एक मिनट सॉरी, कंडक्टिविटी क्या आएगा, इट इज द इलेक्ट्रिकल conductance produced due to all ions present in 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। देखो मतलब अगर मुझे कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा, कंडक्टिविटी, तो कंडक्टिविटी के लिए मेरे पास बहुत सारा सॉल्यूशन रहेगा, लेकिन मुझे सॉल्यूशन कितना यूज करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितने आयंस है वो हमें प्रोड्यूस करेंगे कंडक्टेंस, वो रहेगा कंडक्टिविटी। तो अगर मुझे कोई भी सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा तो मुझे खाली सॉल्यूशन कितना यूज करना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो व्हाट इज कंडक्टिविटी, it is the electrical conductance produced due to all ion but present in how much solution, 1 centimeter cube। और मोलर कंडक्टिविटी का मेन कंसेप्ट क्या है, देखो मोलर कंडक्टिविटी इट इज द इलेक्ट्रिकल conductance produced due to all the ions present in 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution। मतलब देखो इट इज द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, मतलब यहाँ पे भी हमें कंडक्टिविटी मिलेगा, बट कंडक्टिविटी टू व्हाट, ऑल द आयन प्रेजेंट इन हाउ मच सोल्यूट, 1 मोल इन अ गिवन वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे सॉल्यूशन जो मैं जितना दिया उतना सॉल्यूशन यूज करो, लेकिन सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल। करेक्ट, मतलब अगर मुझे किसी ने 1 लीटर सॉल्यूशन दिया, बोला कंडक्टिविटी मेजर करो, तो 1 लीटर सॉल्यूशन दिया हुआ है, लेकिन 1 लीटर के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। करेक्ट, और अगर मुझे कंडक्टिविटी मेजर करना रहेगा तो कंडक्टिविटी के लिए मुझे जितना भी सॉल्यूशन दिया रहेगा उसमें से मुझे कितना सॉल्यूशन लेना पड़ेगा, खाली 1 सेंटीमीटर। ये दोनों में डिफरेंस है। मतलब यहाँ पे भी सॉल्यूशन आयन प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे हमें कितना सॉल्यूशन यूज करना है, खाली 1 सेंटीमीटर क्यूब यूज करना है। और यहाँ पे पूरा के पूरा सॉल्यूशन यूज करना है, खाली सॉल्यूशन प्रॉब्लम एक ही है कि उस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए। करेक्ट,
तो आज हम लोगों ने दो टर्म लर्न किए, एक था टर्म हमारा कंडक्टिविटी और दूसरा टर्म हमारा था मोलर कंडक्टिविटी. I'll just repeat what is conductivity. Conductivity is the conductance of, conductivity is the what is conductivity? Conductivity is the conductance of 1 centimeter cube of the solution. मतलब कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हमारे सॉल्यूशन का अमाउंट होना चाहिए 1 सेंटीमीटर क्यूब. और मोलर कंडक्टिविटी जब हम मेजर करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट होना चाहिए 1 मोल, एंड 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. करेक्ट. तो ये हमारा मोलर कंडक्टिविटी के बारे में हुआ. एक बार चाहिए तो थोड़ा स्टार्टिंग का लेक्चर डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन थोड़ा मैं रिवाइज करता हूँ. देखो एक मिनट. यस, व्हाट इज मोलर कंडक्टिविटी. सबसे पहले हमने मोलर कंडक्टिविटी के ऊपर क्यों जा रहे हैं. देखो हम लोग सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर कर सकते हैं. कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए सॉल्यूशन का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब होना चाहिए. तो हम लोगों ने अलग अलग सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी मेजर कर दिया, लेकिन कंपेयर नहीं कर सकते. तो अगर अलग अलग सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी अगर आपको मेजर करना रहेगा तो उस सॉल्यूशन का हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मोलर कंडक्टिविटी. तो मोलर कंडक्टिविटी का ये भी डेफिनेशन चलेगा. मोलर कंडक्टिविटी का ये डेफिनेशन चलेगा. कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय द मोलर कॉन्सेंट्रेशन. ये पहला. बाद में ये एसआई यूनिट है, ये कॉमन यूनिट है. और उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, सिग्निफिकेंस देखा. व्हाट इज सिग्निफिकेंस. कि जब भी हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की बात करेंगे हमारे पास सॉल्यूट का अमाउंट कंपलसरी कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए. सो 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. करेक्ट. 1 मोल. तो ये नेक्स्ट लेक्चर के लिए ध्यान में रखना तुम लोग कि अगर हमें मोलर कंडक्टिविटी बात कर रहे हैं तो सॉल्यूट का अमाउंट कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए. एंड वॉल्यूम कैन बी 1 लीटर, वॉल्यूम कैन बी 2 लीटर, वॉल्यूम कैन बी एनी मोल. लेकिन जब कंडक्टिविटी की बात करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होना चाहिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब. ओके. तो ये दोनों में डिफरेंस है. तो एक अगर हमारे पास सॉल्यूशन रहेगा तो हम लोग सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं और हम लोग सॉल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी भी मेजर कर सकते हैं. इन सिंपल लैंग्वेज कंडक्टिविटी मतलब क्या, कि अगर हमें कोई सॉल्यूशन दिया रहेगा तो सॉल्यूशन के अंदर जो आयंस है वो आयंस कितना करंट कैरी कर सकते हैं. ओके. तो आयंस कितना करंट कैरी कर सकते हैं, दैट करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉल्यूशन can be measured in terms of conductivity or it can be measured in terms of molar conductivity. Okay. Now do you have any doubt? Sir. Last